rural artisans, right? In last class we discussed about the rural artisans. Today we are going to complete about the khadi and village industries, right? So what is rural artisan? What things we studied in this particular topic? Who is going to tell me about it? That what we completed in this topic, that who is rural artisans, what kind of problems they are facing in the rural areas. So who is going to tell me about it? Raise your hand. And what are the various problems rural artisans are facing? Okay, okay, Piyush, tell me. मैम फीचर पता है in and they usually cater of experience market and limited line. मैम बस इतनी ही है. Okay, what are the various problems which rural artisans are facing? Raise your hand. Who is going to tell me about it? What are the various? They are exploited by the middleman. They do not get raw material from the local area where they are, and they do not get loan from credit loan from the bank. So, what are the various problems of this rural areas? क्या problem है rural artisans? What are the problems they are facing? The exploitation from the middlemen, because they have no idea about the market and the middlemen are exploiting them. They are taking or purchasing the product in the low cost and selling it in the market at high cost, right? But margin, if we are talking about margin, the rural artisans are not able to get that, right? The second one is especially for the small artisans, they are not able to get the formal credit from the bank because they are not as such rich. They are basically facing economical problem. Because of that only, they don't have collateral and they cannot give evidence or collateral to the bank for taking loan. So small rural artisans, they are not able to get the formal credit. And there is a lack of scarcity as well. If there are in normal, if we see that the normal natural resources are depleting nowadays, right? Kam se kam hota ja raha hai. So because of this problem, the rural artisans are not able to get the proper resources, right? Lack of raw material present in their local areas. So these are the problems which rural artisans are facing in the rural areas, right? So today, in last class, we discussed little bit about the khadi and village industries, right? This khadi and village industries, this concept was firstly introduced by Mahatma Gandhi, and he didn't take it as a normal industry, but he basically think that it is a emblem or it is basically a sign of non-violence. Okay, he take it as it is a sign or it is a kind of symbol of non-violence, and that's why some days, after this initiative taken by Mahatma Gandhi, what he said that please boycott the British product and just use the khadi product, right? And they said that the spin is the powerful thing through which we are able to get the freedom. So this kind of concept Mahatma Gandhi have about the khadi industry, and he said that khadi industry will develop the rural areas as well as the economy of our country. So with this perception, he basically the people, or we can say the government, nowadays even khadi industries are there, abhi khadi industries hai. With this initiative, that this will going to help the rural people, rural areas mein development ke kaam mein kaun aayega aapka? Basically khadi industries. And it was the Khadi and Village Industries, KVIC, Khadi and Village Industries Commission was established in 1957 with this aim to develop the Khadi industry in rural areas. So इसमें कुछ points हैं which I am going to explain it first, and then you have to write about it. Okay. Gandhi ji said about the Khadi industries. What he said about the spinning wheel. He said that it is a key to Swaraj. It is a key to Swaraj, means of mass education. People will skilled through this khadi industries. Link between the people of different classes, right? मतलब जो जितने अलग-अलग class, social class की बात हो रही है, it is a kind of link between all the social classes. What? That khadi industries. Third, it is a symbol of dignity as well as manual labor. मतलब एक symbol होगा किसके, मतलब dignity का और साथ-साथ में labor और manual labor. जो ज़्यादातर लोग जो हाथ से काम करते हैं उनको कहते हैं मैनुअल लेबर. ये आपका एक तरीके से इट विल
मतलब एम्बलम ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि जो हम बोल सकते हैं अहिंसा का बेसिकली एक सिंबल बनेगा ये। एंड इट इज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि इंटरनेशनल पीस यानी राष्ट्रीय पीस और जो अंतरराष्ट्रीय पीस के लिए ये उसके लिए भी काम करेगा। साथ साथ में एक विलेज को रिकंस्ट्रक्शन और विलेज के डेवलपमेंट में भी कौन काम करेगा आपका, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की अब हम बात आगे करें तो इसमें अब हम आ जाते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में, KVIC। As I earlier said that it was established in 1957, इसको establish किया गया था, मतलब by the act of parliament, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको पास किया गया था 1 अप्रैल 1957। तो इसको लिखिए कि the Khadi and Village Industries Commission was established on 1 अप्रैल 1957 by the act of parliament, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास किया गया और इसको क्या बना दिया गया, कमीशन बना दिया गया, कमीशन एस्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो था बेसिकली इसका काम क्या था, मतलब KVIC का जो प्राइमरी फंक्शन था, व्हाट इज दैट प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या था इसका, बेसिकली इसका प्राइमरी फंक्शन था KVIC का कि ये बेसिकली काम किस चीज पे करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा किसका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का। यानी कि इट इज नॉट ओनली डू वन थिंग दैट दे विल जस्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड ऑल, बट दे विल डू सो मेनी थिंग्स, दे विल मतलब फंक्शंस आर वेरी मच ब्रॉड ऑफ दिस KVIC, यानी फंक्शंस बहुत ज्यादा थे। सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, इम्प्लीमेंटेशन करना अबाउट द वेरियस डिसीजन एंड वेरियस काइंड ऑफ जो भी आपके चीजें हैं, जो भी जरूरत है बेसिकली KVI मतलब खादी इंडस्ट्रीज में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना किस चीज का, वो सारे प्रोग्राम्स वगैरह का जो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर है किसके, रूरल ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के। सो KVIC जो था इसका मेन मकसद जो था, मेन जो इसका रीजन था इसको स्टैब्लिश करने का, वो था एक प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ खादी इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, एंड इट विल बी हैपन ओनली थ्रू द प्रॉपर कमीशन। ये सिर्फ प्रॉपर कमीशन के थ्रू हो सकता था, इसी के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसने अपने फंक्शंस जो थे, इसके एक सिंगल फंक्शन नहीं थे, मल्टीपल फंक्शंस थे, जैसे ये सारे प्रोग्राम्स को देखना, इम्प्लीमेंटेशन करना, प्लानिंग करना, ठीक है, डेवलपमेंट पे काम करना। और किसके ये कर रहा था डेवलपमेंट पे काम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, सो द मेजर की फंक्शन, अगर हम सिर्फ की फंक्शन की बात करें तो यू कैन राइट वन लाइन that the major या फिर the primary function of KVIC, the primary function of KVIC were generally to plan, organize, generally to plan, function of the KVIC, were generally to plan, organize and implement program for development of khadi and village industries. The primary function of KVIC were generally to plan, organize and implement program for development, of khadi and village industry. So what is the basic function of khadi and village industries? To implement, organize all those functions which is required for the development as well as for implementation of all programs, right? In which area? In khadi and village industries. I guess सबको primary function clear हो गया होगा. Primary function is clear. चलिए अब हम आगे थोड़ा सा और move on करते हैं इसी में, ठीक है? तो बेसिकली जो फंक्शन KVIC का था, अगर हम और भी चीजों को देखें, अगर इसको डीप एनालाइज करें हम KVIC के फंक्शंस को, तो और भी कुछ फंक्शंस थे। प्राइमरी फंक्शन तो मैनेज करना था, काइंड ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो द प्राइमरी फंक्शन इज द मैनेजमेंट ऑफ आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। बट अदर जो फंक्शंस है, और क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ KVIC का, तो ये इट कीप्स अ रिजर्व ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स एंड सप्लाई देम एट इकोनॉमिकल रेट टू द आर्टिसंस।
यानी जो केवीआईसी मतलब जो कमीशन था वो क्या करता था, वो रॉ मटेरियल्स वगैरह को स्टॉक कर लेता था। मतलब दे आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर पीपल्स, मतलब सबसे खरीदते थे रूरल एरियाज में, उसको स्टॉक कर लेते थे। और उस रॉ मटेरियल की जिसको जरूरत है, लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटन आर रिक्वायर्ड, तो उसको क्या करते थे, स्टॉक कर लेते थे। जो भी आर्टिस्ट है जिनको भी उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसको इकोनॉमिकल कॉस्ट में, यानी कि बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में उनको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे। तो बेसिकली दे आर सपोर्टिंग द रूरल आर्टिशंस। रूरल आर्टिशंस में यहाँ पर सारे लोग हो जाएंगे जो स्पिनिंग कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, पेंटिंग का जो भी रॉ मटेरियल, जो मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का क्या था, रॉ मटेरियल को स्टॉक में रख ले, ताकि कल को अगर उनको जरूरत पड़ेगा किसी को रॉ मटेरियल की, और इफ दे आर परचेजिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड, दे हैव टू पे अ हाई अमाउंट, बट बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट द रूरल आर्टिशंस, what they did, they first stock it and then they sell it in the economical cost to the rural artisan. So this one is the first function of the KVIC. The primary function is management, that is okay, but now the secondary functions are, the first one ये है, इसमें लिखिए, first one लिखिए, it keep a reserve of raw material, it keep a reserve of raw material. समझ में आ गया जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो समझ, सबको समझ में आ गया कि ये क्या करता था काम। बेसिकली फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन का पहला पॉइंट जो मैं अभी लिखवा रही हूँ, सबको क्लियर हो गया? अब लिखवा रही हूँ इसीलिए पहले पूछ ले रही हूँ, क्लियर हो गया? इसमें लिखिए, it keep a reserve, it keep a reserve of, it keep a reserve of raw materials, it keep a reserve of raw materials and improved implements and improved implements and improved implements and supply them at economical rates and supply them at economical rates to the artisan. It keeps a means reserve of raw material, it keeps a reserve of raw materials and improved implements and supply them at economical rates and supply them at economical rates to the artisans. यानी आर्टिस्ट को लो रेट में वो बेसिकली क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। ये भी काम किसका था, आपके केवीआईसी का, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट इसका और भी क्या ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली केवीआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, टेक्निकल स्किल वगैरह में, मतलब बेसिकली टेक्निक्स को थोड़ा इंप्रूव करना, मतलब रूरल आर्टिस्ट जो बोल सकते हैं ना प्रिमिटिव टूल्स पे, ट्रेडिशनल टूल्स पे डिपेंडेंट है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना, इनका ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ठीक है, टेक्निक्स किस चीज में इंप्रूव करना, पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इंप्रूव करना एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। If you will use a proper machinery system or we can say improved or upgraded technical system, in that case दो ही रिजल्ट होगा, आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इफिशिएंट और हाई प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। सो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था एक, बेसिकली कि हम जो है अब इम्प्रूवमेंट करें किसका, मैन्युफैक्चरिंग का एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स का। तो इस पॉइंट में लिखिए, तो objective is to improve the technique of manufacture. Its objective is to improve the technique of manufacture and quality of the products and quality of the products. यानी कि बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा हो, यानी प्रोडक्ट बिल्कुल बेस्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, ये क्या करते थे, कि ये जो रूरल आर्टिस्ट को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, टेक्निकल बेसिकली अपग्रेडेशन करते थे, और साथ साथ ये ना एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस इन्होंने रेडी किया था कि जो भी रूरल आर्टिस्ट प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, रूरल आर्टिस्ट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सही रेट में मार्केट में सेल करवाया जाए। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पर एक तरीके से 100% सपोर्ट केवीआईसी किसको दे रहा था, रूरल आर्टिशंस को यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लिखिए, आगे लिखिए, it provide a suitable organizational base. Third point, it provide a suitable organizational base. It provide a suitable organizational base for wider marketing
for wider marketing of the artisan's product, of the wider marketing of artisan product, ठीक है. It provides a suitable organizational base. For wider marketing of the artisan's product. यानी कि what is the major concept of this? What is the major concept of the KVIC? That वो एक organizational base है, यानी कि रूरल जो आर्टिशंस है उनके प्रोडक्ट का सही रेट मिले, वो प्रॉपरली प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाए. अर्लियर मैंने एक प्रॉब्लम बताया था रूरल आर्टिशंस की प्रॉब्लम. मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो रूरल आर्टिशंस थे उनको मिडल मैन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, बिकॉज उनको मार्केट का आइडिया नहीं है. वो पहले प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, देन दे सेल इट इन हाई प्राइस. तो ये जो सिचुएशन था जहां पर वर्स्ट कंडीशन हो रहा था किसका, रूरल आर्टिस्ट का. सो केवीआईसी इज अ काइंड ऑफ अ वेपन व्हिच इज यूज्ड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द रूरल आर्टिस्ट, ठीक है. तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि उनके प्रोडक्ट का सही रेट मिले, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बेस को तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट कहाँ पर सेल कर सकते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको, बेसिकली आप वहां के रूरल आर्टिशंस को. ये भी बेसिकली एक फंक्शन था किसका, केवीआईसी का. क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट द पैटर्न. यस आशुतोष, मतलब क्या होता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपको ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर आप प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं ना, एक स्ट्रक्चर रेडी करना, जहां पर आपको मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन, एचआर डिपार्टमेंट सारे होते हैं. लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो यहाँ पर जो केवीआईसी था वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस रेडी कर दिया, एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया कि भाई पहले आप रजिस्टर कराइए, पहले आप इनसे मिलिए, एंड फाइनली उनके प्रोडक्ट जो है फाइनली मार्केट में जाके सेल हो. यानी कि एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, किसके लिए, एक पैटर्न रेडी कर दिया, एक तरीका रेडी कर दिया किसने, केवीआईसी ने, ताकि जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट रूरल आर्टिस्ट के प्रॉपर प्राइस में सेल हो. यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन्होंने एक बेस को रेडी किया ताकि रूरल आर्टिशंस के प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली मार्केट में सही रेट में सेल हो. या तो केवीआईसी इसमें ये भी कर सकता है कि वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी कर दिया उसने, ताकि प्रोडक्ट जो है पहले वो वहां पर ट्रांसफर हो और फिर फाइनली वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे. तो यहाँ मिडल मैन को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है. kind of. समझ में आया आशुतोष? मैम जस्ट एज warehousing process. We can say it, but it is not like that because warehousing is something where we are basically stocking the product, right? So it might be possible कि उन्होंने एक तरीका, एक मार्केटिंग अप्रोच को शुरू किया हो ऑर्गेनाइजेशनल बेस को, जहां पर या तो वो लिंक करते होंगे यानी कि मार्केट से रूरल आर्टिशंस को, या फिर वो प्रोडक्ट को रखते होंगे अपने पास और सेल करते होंगे. इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है. तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस का मतलब यही है कि आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल कर पाओ, यानी रूरल आर्टिस्ट सही रेट में कहाँ तक सेल कर पाए इसको, मार्केट तक. क्लियर हो गया आशुतोष? चलिए, ऑर्गेनाइजेशनल बेस रेडी करके देना है और ठीक है. ऑब्जेक्ट सो बेसिकली यहाँ पर जो पैटर्न और असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे थे वहाँ के रूरल आर्टिस्ट को, कुछ इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है. और कुछ और भी चीजें थी, जैसे वहाँ पर केवीआईसी ने एक और चीज प्रोवाइड किया था, कुछ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जहाँ पर रूरल आर्टिशंस खुद को रजिस्टर करवा सकते थे और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का भी यूज किया जा रहा है. जैसे उसमें पहले मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशनल बेस, यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेटिव सेक्टर्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और ये केवीआईसी के अंडर में शुरू हुए इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेटिव्स. उन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने कुछ चीजें इसमें क्या किया मैं बताती हूँ. देखो रूरल आर्टिस्ट था, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन. एक तो ये चीज था कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेडी करके दे दिया किसको, रूरल आर्टिशन को. और रूरल आर्टिशन कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली के थे, बहुत ज्यादा पुअर. वो इतने पुअर थे कि उनके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे. अब उनके पास रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो इनका जो स्किल है, रूरल आर्टिशन जिनका स्किल है, बिकॉज ऑफ
poverty, they are not able to utilize it. तो इसको चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसी फैमिलीज जो रूरल आर्टिशंस की फैमिली है, बट बिकॉज दे आर वेरी मच पुअर, कुछ इंस्टीट्यूट्स को और कुछ कोऑपरेटिव्स को स्टैब्लिश कराया गया केवीआईसी के अंडर में। और ये जो पुअर फैमिलीज थी, ये जो पुअर फैमिलीज थी आर्टिस्ट की, ड्यूरल आर्टिस्ट की, उनको क्या कराना था, खुद को रजिस्टर्ड, और वही जो केवीआईसी था वो क्या करता था, इनको वर्क दिलवाता था, यानी काम दिलवाता था। समझ में आई? वर्क अपॉर्चुनिटीज देता था कौन? बेसिकली आपका केवीआईसी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि रूरल, देखो फर्स्ट तो था ऑर्गेनाइजेशन बेस रेडी करके देना, एक फ्रेमवर्क रेडी करके देना कि ताकि रूरल आर्टिस्ट का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस प्रॉपर मिले रूरल आर्टिस्ट को। ये तो उसके पहले वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाला तो जो पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट, दैट देयर आर सो मेनी पुअर फैमिलीज इन rural areas, but basically they are skilled people because they are belong to the rural, they are rural artists as well as they belong to the rural artisans family. In that case, what happened, that KVIC knows that they have lack of, they can't able to afford the price of raw material and all. So because of that only, there are some cooperatives and institutes which are established under the KVIC. And what is the purpose of all these institutes? They are basically providing the work opportunity, or we can say the job to these rural these poor families. But before that, what the poor families need to do, they just need to register themselves under these institutions and cooperatives. So this is the last function of KVIC. Clear हो गया? Last function clear हो गया? Point clear हो? Raise your hand. Point clear सबको? ठीक है, चलिए अब हम, you can write कि KVIC established, KVIC, under KVIC some institutions and cooperative was established. Under KVIC some institutions and cooperatives was established. Under KVIC some cooperatives and institutions was established. ठीक है, लिख लिया? अंडर केवीआईसी आगे लिखिए, राइट? These institutions are basically for providing job opportunities, to the poor rural family, to the poor families and rural artisans. Yani these institutions are established for providing the job opportunities to the rural families, poor rural families, as well as to the rural artisans or rural artisans की family. So this one is the last point. ठीक है, but for this आगे लिख सकते हैं, but for getting job they just need to register themselves under these institutions. For getting job, the poor families or जो people, rural artisans, they just need to register themselves under this institutions. Clear हो गया? Getting job under, एक minute, Are basically for providing job opportunity to the poor family and rural artisans. But for getting job, poor family need to register under this program. For getting job, poor families under these institutions. For getting job, rural family just need to register themselves under these institutions. अपने आप को पहले register करवाएंगे, उसके बाद फिर after that they will get job opportunity. What they did basically, क्या क्या चीजें इन्होंने की? इन्होंने emphasize किया कुछ technical improvement पे, ठीक है? Traditional implement से उन्होंने rural artisans को कुछ और भी technical assistance वगैरह provide किया. और टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्निकल इंप्रूवमेंट से क्या क्या चीजें हों, तो व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द टेक्निकल इंप्रूवमेंट इन द रूरल एरियाज जो केवीआईसी के थ्रू हुआ? मींस केवीआईसी बेसिकली टेकिंग इनिशिएटिव टू basically improve the technical assistance, technical improvement, sorry, they basically started giving they providing the assistance as well as technical assistance take place in the rural areas by KVIC. And what is the result of this technical improvement? क्या क्या result हुआ इस technical improvement का? पहला point, increase their productivity. So you can write the point
that technical improvement was done by KVIC. टेक्निकल इम्प्रूवमेंट ये फंक्शंस में नहीं है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट इन द रूरल एरियाज बाय केवीआईसी. क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर द रिजल्ट और व्हाट आर द आउटकम ऑफ द टेक्निकल इम्प्रूवमेंट इन द रूरल एरियाज. यानी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट से क्या क्या चीजें, क्या क्या मिला, क्या क्या बेसिकली अचीव हुआ, ठीक है, क्या क्या आउटकम और क्या रिजल्ट हुआ. तो इसके रिजल्ट्स क्या क्या थे उसके बारे में हम लिखते हैं. पहला पॉइंट इसका क्या हुआ, फर्स्ट कि इट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. किनकी प्रोडक्टिविटी? रूरल आर्टिस्ट की. बिकॉज टेक्निकल इंप्रूवमेंट हुआ, आपको बेटर मशीनरी, बेटर टूल्स मिले. जहां पर आप एक कोई भी प्रोडक्ट बनाने में यू आर टेकिंग 2 or 3 hours, नाउ यू जस्ट नीड टू कंप्लीट इट विद इन 1 hour. तो ऐसे केस को ये क्या हुआ, बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, यानी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ. ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी का मतलब इट ऑलवेज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल एंड टाइम. यानी रॉ मटेरियल आप कितना यूज कर रहे हो और आप टाइम कितना लगा रहे हो. बेसिकली टाइम से रिलेटेड होता है कि जहां आप एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 घंटा लगा रहे थे, यू आर नॉट टेकिंग 1 hour फॉर दैट. तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. जहां आप पूरे दिन में 4 प्रोडक्ट बना पा रहे थे, अब वो जस्ट आप उसका 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 16 प्रोडक्ट बना लीजिएगा. सही बात है या नहीं? तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग, द प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इंप्रूवमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट तो ये इसका रिजल्ट हुआ, इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. रूरल आर्टिस्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, improve the quality of product. improve the quality of product. improve the quality of product. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, उसकी जो फिनिशिंग थी, उसका जो बेसिकली मटेरियल वगैरह जो भी हम यूज कर रहे थे, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह यूज कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं कि टेक्निकल यूटिलाइजेशन की वजह से उसको जो शेपिंग वगैरह देना. जैसे मान लीजिए कि अगर हम पॉटरी की बात करें, पेंटिंग की बात करें, इफ यू विल गेट समथिंग बेटर, यू कैन ड्रॉ समथिंग बेटर, राइट. तो यहाँ पर वही सिचुएशन था कि यहाँ पर जो बेसिकली क्वालिटी था बिकॉज ऑफ टेक्निकल इंप्रूवमेंट वो थोड़ा बेटर हो गया. थोड़ा मशीन वाले चीजें जो होती है वो ज्यादा प्रॉपर फिनिशिंग होती है. तो यहाँ पर जो बेसिकली कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और क्या क्या रिजल्ट हुआ इस चीज का. enhance their earning. enhance, ENHANCE, enhance their earning. यानी उनकी earning बढ़ गई. obviously earning तो increase होगी because productivity is increased, quality is increased. if the quality of the product is increased, definitely you can take a high amount than the previous amount. like अगर मैं कोई 500 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, but because my quality of the product is increased, maybe I can sell it for the 600 or 700, right? so the earning of the particular rural artist was increased, or we can say enhance the earning. enhance their earning. enhance their earning. ठीक है, enhance their earning. और KVIC वर्क्स एज अ पायनियर इंडस्ट्री. पायनियर इंडस्ट्री का मतलब वैसे पायनियर का मतलब क्या होता है, समथिंग व्हिच इज स्टार्टेड बाय समवन फर्स्ट टाइम. यानी कोई भी वैसी चीज जो पहली बार जिसको शुरू किया गया. तो रूरल इंडस्ट्रीज और रूरल आर्टिस्ट के लिए सबसे पहला ऐसा इनिशिएटिव था जिसको लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. तो यहाँ पर टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी हुआ, ठीक है, बेटर हुआ, सिचुएशन ठीक हुआ. और साथ साथ में जो इंटरमीडियरीज वगैरह जो थे उनको भी बेसिकली उन्होंने बेसिकली क्या किया, साइड किया मिडल मैन वगैरह को. ठीक है, और साथ साथ में कुछ नई नई चीजें भी लेकर आए खादी इंडस्ट्रीज के लिए. इन्होंने क्या क्या लेकर आई है, जैसे स्पिंडल, विविंग मशीन्स वगैरह. ठीक है, उसके बाद गैस सेलर, राइस पॉलिशर. तो मतलब बहुत सारे मशीन्स और नई नई चीजें ये इंडस्ट्री में लेकर आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, तो इसी तरीके से कह सकते हैं आज भी हमारा जो KVIC है, मतलब इन आवर कंट्री अभी भी ये मतलब लगभग ये 50 साल से ये चीजें चल रही हैं, अभी भी चली रही हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं इसने उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा दिया है, अर्निंग भी बहुत इंक्रीज किया है इनका, रूरल आर्टिस्ट का. ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिनको इन्होंने पॉवर्टी लाइन से बेसिकली पॉवर्टी के ऊपर किया, यानी उनके अर्निंग और उनके सिचुएशन और लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर किया है. So this is how KVIC basically contributed to the rural development. Now next point जो है हमारा next जो topic है, that is agro based and agro processing industries. Agro based and agro processing industries. Agro based and agro processing industry. In khadi and village industries. Anyone want to ask any question from that particular topic? Yes, Utsav. मैम ये टेक्निकल इम्प्रूवमेंट जो आप लिखवाएं उसमें 3 ही पॉइंट लिखना है. Yes.
Only 3 points are there. Productivity is increased, quality is increased, and finally the earning of the people, earning of the rural artists are increased. Yes, Piyush? मैम टेक्निकल इम्प्रूवमेंट में क्या लिखवाई थी पहला पॉइंट? First point is productivity is increased. Yeah, increase in the productivity. Productivity का मतलब होता है जो production आप कर रहे हैं उसका basically वो increase होना. So that is called productivity increase. Number of the product whatever you are producing earlier that is now increasing. ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम सेव करके प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर रहे हो, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रहे हो. दिस इज नोन एज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ओके, एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? वी जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. बिफोर दैट एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? राजू. सो एग्रो बेस्ड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो नाम से ही ये पता लग रहा है कि द वैसी इंडस्ट्रीज विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि वैसे इंडस्ट्रीज जो सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होंगे. Agriculture doesn't mean that it only consists farming, grains, horticulture, everything comes under the agriculture, even livestock, pisciculture, these all things are the part of agriculture. पता होगा आप लोगों को agriculture सिर्फ crop और farming से related नहीं होता है. यहाँ पर livestock जो animals, ये जो आपके जितने भी dairy products, all these things comes under the agriculture. ठीक है, जो रॉ मटेरियल के थ्रू प्रोसेस करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन से इंडस्ट्रीज होंगे? जो एग्रीकल्चर पे बेसिकली बेस्ड होंगे फॉर प्रोडक्शन, राइट. तो यहाँ पर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरियाज में ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है. और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये दो काम करती है. वो क्या करती है? पहली चीज एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करती है. दे आर बेसिकली मेकिंग अ लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, बिकॉज जितने इंडस्ट्रीज उतनी एम्प्लॉय, उतना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, उतना इकोनॉमिक सिचुएशन इंक्रीज, राइट. तो यहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें होंगी? बेसिकली मेजर जो इसमें लिए गए हैं चीजें एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, इनको इफिशिएंसी इंक्रीज करना, मतलब बेसिकली इन पे काम किया गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे. और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर में आएंगी. जैसे आपकी क्या क्या चीजें होंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर में? तो फर्स्ट पॉइंट इज फूड प्रोसेसिंग आएगा, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन आएगा आपका, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का मतलब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, डेयरी एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट. सो यहाँ पर न्यूमरस ऑफ प्रोडक्ट्स आर कम्स अंडर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एंड व्हाट आर दोस? फूड प्रोसेसिंग, horticulture products, livestock, as well as vegetable oil production. So all these comes under the agro based industries. तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि agro based industries are dependent on agriculture for the production of, depend upon the agriculture for production. ठीक है, depends upon the agriculture for production. ठीक है, it create or it link, या इसमें लिखिए it create a link between agriculture and industrial sector. It create a link between agriculture and industrial sector. Yani what they are doing, basically they are making a link between the manufacturing and the primary sector, that is agriculture. So it creates a link between agriculture and the industrial sector. And so many, we can say numerous activities are comes under the agro based industries. Numerous activities comes under the agro based industries. These industries consist numerous activities. These industries consist numerous activities which belong to the agriculture. It consists numerous activities which belong to the agriculture. These are आगे लिखिए, these are food processing, vegetable oil production, horticulture products,
dairy and livestock product, horticulture product, dairy and livestock product, dairy and livestock product, कॉमा आगे भी लिखिए और भी कुछ है चीजें, फिश एंड फिश प्रोडक्ट, फिश भी कंसिस्ट करता है और फिश प्रोडक्ट्स भी, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, एंड कंज्यूमर गुड्स, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन, डेयरी एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, फिश एंड फिश प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्री में ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स वगैरह ही को रेडी किया जाता है। कुछ ऐसे और भी चीजें आएंगी इसके अंडर में, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे जूट वूट की चीजें हैं, वो बेसिकली कंजप्शन के लिए नहीं होता, दैट इज फॉर द कंज्यूमर गुड्स आर देयर बट दैट इज नॉट फॉर कंजप्शन। तो इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट वैसे बनते हैं जो कंजप्शन के लिए होते हैं, और बेसिकली यहाँ पर ऐसे भी कुछ गुड्स हैं जो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स है। कौन कौन से गुड्स होंगे कंज्यूमर गुड्स, जो आपके खाने पीने की चीजें हो गई, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो डेली वाली चीजें होंगी। तो ये सारे कंज्यूमर गुड्स वगैरह में क्या करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, काम करता है बेसिकली प्रोडक्ट को रेडी करता है। ठीक है, अब जैसे कि अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज मैंने तो लिखवा दिया, दैट इज आई थिंक मोर, कुछ कमिटीज वगैरह इनमें बनाई गई है। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड होता है, शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन, राइट, तो शुगर केन के थ्रू क्या होता है, शुगर तैयार होता है, रेडी होता है, तो शुगर इज द आउटकम ऑफ दैट, गुड़ इज आउटकम ऑफ दैट, खंडसारी, तो देयर आर सो मेनी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द शुगर बेसिकली। ठीक है, तो उसको बनाया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, कॉटन के थ्रू, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो सारे बेसिकली कॉटन के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्रीज भी इसके अंडर में आएगा, एग्रो बेस्ड में सारे इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज भी इसी के अंडर में आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी इसी के अंडर में आएगा, आपका जूट इंडस्ट्री भी इसी के अंडर में आएगा, और आपके रबर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, कॉफी इंडस्ट्री, ये सारे के सारे आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के पार्ट है। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आपका शुगर इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्री। ठीक है, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टी, कॉफी सब। ठीक है, तो जो बेसिकली इनके लिए यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी बनाया गया था, ठीक है, जिसको हम खुसरो कमेटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी को रेडी किया गया था, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से पता लग रहा है कि व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, तो इसको खुसरो कमेटी भी हम कहते हैं। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, कि बेसिकली इसको हम रहने देते हैं, बट कमेटी ने कुछ चीजों को डिफाइन किया था। कमेटी ने तीन चीजों में बेसिकली आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया था। एक है क्रॉप प्रोडक्शन, एक है वुड प्रोडक्शन, और एक है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इन्होंने तीन बेसिकली कैटेगरीज को इन्होंने बनाया था, क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन एंड वुड प्रोडक्शन एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, so committee has classified agro based industries in the 3 broad। ठीक है, और ये कौन कमेटी थी, एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी, जिसको हम खुसरो कमेटी भी बोलते थे। और ये किसका था कमेटी, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आरबीआई के द्वारा। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, क्रॉप प्रोडक्शन, वुड प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, और हर एक इंडस्ट्रीज के अंडर में ना 2-2 और सब इंडस्ट्रीज थे, 2-2 और सब इंडस्ट्रीज थे। यहाँ पर देखिए व्हाइट बोर्ड, यहाँ पर क्या सिनारियो था ये देखिए ध्यान से, कि जो खुसरो कमेटी था, खुसरो कमेटी, उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया। पहला था क्रॉप प्रोडक्शन, सेकेंड जो था दैट इज वुड प्रोडक्शन, एंड द थर्ड वन इज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, अब इन तीनों के अंडर में एक एक सब कैटेगरीज भी इन्होंने डिवाइड किया, यानी हर एक के अंडर में क्रॉप प्रोडक्शन में भी क्या क्या था, फूड प्रोसेसिंग, नॉन फूड प्रोसेसिंग। तो हर एक के अंडर में भी इन्होंने 2-2 सब कैटेगरीज को बनाया। ठीक है, अब बात करें हम फीचर्स की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो क्या क्या फीचर्स थे, तो ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया। एक आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी बनाया गया था बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए,
और वो उसने कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए और दे सेड समथिंग अबाउट बेसिकली कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो इन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया था चीजों को, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो अगर अब हम बात करें बेसिकली जस्ट फीचर्स की कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बेसिकली क्या क्या काम है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बेसिकली फीचर्स। सबसे पहली बात, कौन मुझे बताएगा about the khadi and village industries in short, in brief, who is going to tell me about it, how this concept was started, who started this concept, what kind of thinking he have, ठीक है, what are the basically role of KVIC, so who is going to tell me about it in brief, raise your hand, ये बताइए मुझे। Ma'am, Khadi and village industry is first started by the Mahatma Gandhi. This initiative is taken, this idea was started by Mahatma Gandhi, yes. Mahatma Gandhi. Under this Khadi and village industry, khadi cloths, production of khadi cloths are developed for the rural area, and also this khadi and village industry is also for the artisans to develop and to develop the product to the rural artists and to the market area. And then after the Khadi and Village Industry Commission was started in 1957 on 1st April. Under Khadi and Village Industry Commission, the three steps were taken, that is planning, organizing, and then after implementing. This is the primary function of KVIC. And the secondary function of KVIC is to reach the raw material to the artisans, to the to the very rural area. And the third function, or maybe called objective, is that to develop the technical product, to develop the technical product for the manufacturing and technical improvement, technical upgradation, ठीक है, technical products नहीं, technical upgradation are used for production purpose. Yes, आगे only 3 I remember. What about what kind of result they get after technical upgradation? What kind of result they found? Who is going to tell me about? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Okay, Ashutosh, good. Who is going to tell me about it? Increase the production, improve quality of product, enhance earning. Very good. Next, what Gandhi ji? It was an act for non-violence and for Swaraj. And ma'am, Gandhi ji worked for the freedom from independency, ma'am, from the British rule. He just think that it is a kind of basically it is a ये क्या है basically आपका एक तरीके से it is become a weapon for basically taking the on, तो it is a kind of non-violence का ये क्या था, एक तरीके का आपका एक weapon की तरफ है ये, आपको non-violence मतलब non-violence के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, स्वराज अचीव कर सकते हैं. Yes, अभिजीत. For Mahatma Gandhi, it's for the self-reliance, reliance of India for the production and earning up and improve the rural village and enhance the production. Okay. Yes, Abhijit. Okay, so see you all in the next class, Shitosh. We have also said that the khadi product and the other product. So under this. Nowadays, it is very much costlier. Just dependent on the artificial products, like so many machineries there. We are able to get the clothes in a very low price. And someone who is doing the manual works, अभी भी manual work के through ही वहाँ पर खादी में production हो रहा है. यानी कि जो लोग हैं वो हाथ से अभी भी बना रहे हैं product. So if someone is taking around 2 hours to making a product and within 2 minutes one product is ready, so just think about it कि वो product की efficiency कितनी ज़्यादा high है ना? जहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा, इसलिए nowadays even the khadi products are expensive.
ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज एक्सपेंसिव, प्रिमिटिव थिंग, स्टिल दे आर यूजिंग अ लॉट मैनुअल वर्क, ठीक है. तो हार्ड वर्क इज ऑलवेज इन्वॉल्वड इन द खादी इंडस्ट्रीज. That's why the product is little bit expensive as comparison to the other products available in the market, right? Okay, so see you all in the next class.